Hey guys, very good morning. This is Yogendra from FOSC. Can you please confirm if you can hear me, guys? Okay, Chandan, Saksham, Saurav. Okay, good. They're saying yes, we can hear. Piyush, good. So guys, let's start now. There was some power, failure issues, but power is back now. I think it should be a normal. चलिए start करते हैं. Guys, yesterday's session, right? If you remember, we were talking about HTML and CSS, right? And how come we can, actually, change the cosmetic part, we can change the presentation part, we can change the visual part of HTML content using CSS, right? And in that process, we got to know that, you can connect a combination rule set लिख सकते हैं, with that tag can be there. The other thing was using ID, you can handle that, or using class you can handle that, right? टैग के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है HTML CSS को, ID के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एंड क्लास के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? टैग नेम तो सिंपली लिख दिया कि लेट्स से बॉडी एंड नाउ यू से बैकग्राउंड कलर इज दिस, राइट? ID जब यूज करते थे तो हैश का यूज किया जाता था, हैश एंड देन द ID that you want to specify here and then you can write the CSS there. क्लास का यूज करते थे तो डॉट मैथ यूज करते थे and there you can write that case. So those were the cases that how come using CSS properties, right? How come using CSS properties you can change the visuals. Guys, is that clear with everyone? Yesterday we had that discussion, right? And there is actually a very popular site एक काफी popular site है where you can see that how your CSS can change the entire look and feel of a page having the same HTML same है. तो आपने एक site का नाम सुना होगा cssgengarden.com, right? So in this site you can see the text is same, right? A demonstration of what can be accomplished through CSS based design, right? ये सब कुछ text same है, कहीं पे भी कोई change नहीं है, but you can change the CSS, right? And once you change the CSS, the complete visuals, right? Complete, a look and feel changes. So let's say you choose, for example, let's say I think you choose this CSS, for example, right? And after that changing, you see the visuals change, but the you can still remember this text is same, right? We had the same text in the earlier version. So now you can see how the CSS changed the entire look and feel, right? How the CSS changed the entire look and feel. So that is one case here. You can go for something else, like किसी और को भी change, आप दूसरा कोई theme ले लो. Theme का मतलब CSS, सिर्फ CSS change हो रहा है, and then you have something else to show, right? So that is the case. ये तो original हमारा case आ गया. Let's take this CSS robot named Jimmy now. So you can see this again, guys, the text is same, HTML is same, the only change that you get is through the CSS ने entirely उसका visual change कर दिया है, complete change कर दिया, right? So that is the case, guys, right? Scheme for, so you have a lot of CSS available, and now you can see this, guys, right? अभी भी वही है, text वही है, demonstration of what can be accomplished. So everything is same, the only change is in CSS, and now you can see
how we can change the complete look and feel of the same site. Is that clear with everyone, guys? cssgengarden.com is a very good site to showcase कि CSS क्या कर सकता है तुम्हारी HTML site को. So that's the example from today, from yesterday, guys, right? अब हम थोड़ा सा आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट को एक क्विक वॉक थ्रू की उस पैटर्न पे हम लोग लेने वाले हैं, राइट? और एग्जैक्टली क्या आज का एक तरह से सीन है, वो सीन इस तरीके का है कि आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट को समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली जावा स्क्रिप्ट का क्या पॉसिबल रोल हो सकता है इन योर HTML CSS एंड JS स्टोरी. इस पूरे मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि भाई HTML is for skeleton, right? It creates the skeleton of your page, but CSS brings the cosmetic part, right? But the behavior is handled by JavaScript. The behavior is handled, right? Action, animation, right? Action, animation, right? जो भी आप कर रहे हो, इस पर क्लिक किया था ऐसा हो गया. That is all handled through JavaScript. So basically, अगर हम क्या क्या कर सकते हैं, what we can do with the JavaScript, right? So JavaScript, what JS can do, right? What JS can do if we understand this part, right? So JS can actually, right? JS can change HTML content. HTML content को change कर सकता है. पहले कुछ content था, using JavaScript you can change the content. Paragraph में पहले कुछ और लिखा हुआ था, you can change that paragraph content, right? So you can change that. The second right is you can, JS can change, right? JS can change HTML attributes, right? HTML attributes को background color क्या है, font क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उनको भी change कर सकती है. पहले background color red था but अब blue है, it can change that, right? Or let's say changing the image, click to image change होगी, that happens through JavaScript, right? So उन attributes को change कर सकते हैं, उन styles को change कर सकते हैं, right? Background properties, इन सब चीज़ों को change कर सकते हैं. And JavaScript can show and hide the HTML content as well, right? Show and hide HTML content. हम किसी HTML content को show and hide भी कर सकते हैं using JavaScript, right? तो content को change कर सकते हैं, attributes को change कर सकते हैं, styles को change कर सकते हैं, and the content को show and hide भी किया जा सकता है. So that is all bringing kind of a dynamic behavior in your page. ये सब चीजें JS के through हो रही हैं. Guys, is that clear with everyone कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने किस तरीके से JS का पैटर्न जो है वो समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट? That's good. अब लेट्स सी कपल ऑफ एक तो कुछ क्विक एग्जांपल हम देख लेते हैं जल्दी से. एक उसका क्या सीन है. तो मैंने क्या किया है, jsexamples.html करके एक पेज बनाया है. एक्सटेंशन इज स्टिल HTML गाइस, राइट? एंड कल आपको ध्यान है, कल हमने CSS को भी HTML के पेज में लिखा था. CSS के 3 केसेस बताए थे मैंने. एक तो इनलाइन CSS हो सकता है, एक इंटरनल CSS होता है और एक एक्सटर्नल CSS होता है, राइट? तो आपको ध्यान है जब हमने इनलाइन CSS लिखा था तो वी यूज्ड स्टाइल टैग, राइट? हमने एक स्टाइल टैग को यूज किया था एंड देन वी रोट द CSS कोड इनटू दैट. एक्सटर्नल फाइल को भी हमने इंक्लूड किया था. हमने लास्ट में क्या किया था, पूरा कोड जो इनलाइन इंटरनल CSS में लिखा हुआ था, उस इंटरनल CSS पूरे कोड को कट करके हमने एक एक्सटर्नल .css फाइल में सेव किया था और उस .css फाइल को हमने वहाँ पे जाके सेव कर दिया था, राइट? और उसको लिंक कर दिया था. दैट वाज द केस. उसके बाद आपको ध्यान है, इफ यू रिमेंबर गाइस,
अब हम आज क्योंकि JS का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बट फाइल का एक्सटेंशन अभी भी मैंने HTML ही रखा है, right? We are going to have the same, on this. And now let's see one example where, what we are doing using JavaScript. तो मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, देखिए, guys, see this. Here you can see, right? What you can see, guys, यहाँ पे तुमको अब मिल रहा है कि this is our HTML. Okay, fine, we got it. ये हमारा यहाँ पे हेड हो गया, सो इसको क्लोज कर सकते हैं. इट इज नॉट क्लोज्ड, राइट? सो वी कैन क्लोज इट. दैट इज डन. एंड देन फिर हमने बॉडी में, और बॉडी में इस बार देखो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है. दिस इज अंडर द स्क्रिप्ट टैग, राइट? That means whatever you have written inside the script tags, it's a JavaScript code. It is a JavaScript code, right? And now easily you can see what we are doing. We are declaring 3 variables, right? Where is the keyword here? We are declaring 3 keywords here: num1, num2 and sum, right? आप चाहो तो semicolon लगा सकते हो लास्ट में, right? So that is there. And num1 is equal to, अब हम क्या कर रहे हैं? We are asking for the user input. User से हम लोग input मांग रहे हैं, और that input happens through prompt method. तो ये prompt क्या करेगा? User को prompt करेगा कि भैया कुछ तुम्हें input करना है. So first prompt आएगा तो that would be the message, enter first number. Second prompt जब आएगा that would be the message, right? And when we get these 2 values in num1 and num2, we are converting num1 and num2 into integer, parse int. There you can see that is a kind of a typecasting happening, and we are adding them, and then again showing that sum on the page. हमने वापस से उस पेज पे दिखाया, तो alert करके एक हमने मेथड यूज किया है, वो एक तरह से पॉपअप की तरह हमें वो मैसेज दिखाई देगा. पॉपअप की तरह वो मैसेज हमको दिखाई देगा, राइट? सो यहाँ से लेके लाइन नंबर 7 से लेकर के 11 तक ये कोड लिखा हुआ है, num1, num2, and then we are taking this. So let me save this. और अगर हम इसको जो है रन करें कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है. सो जब मैंने इसको रन किया तो देखिए, रन किया तो एक उसने मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट? दैट इज द मैसेज हमने वहाँ पे लिखा था. मैंने नंबर लिख दिया, लेट्स से 12. फिर मैंने ओके प्रेस किया. देन आई गॉट द सेकंड प्रॉम्प्ट, एंटर द सेकंड नंबर. देन आई लेट्स से एंटर 13. And then finally I got this alert. ये prompt नहीं है, prompt में तो input दिया जाता है, right? This is the alert, guys, right? This page says sum is equal to 25. So ये एक JavaScript में बहुत ही छोटा सा हमने एक कोड लिखा था कि किस तरीके से we can have that. So guys, is that clear? ये हमने कैसे जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, यूजर से इनपुट लिया है, दोनों चीज़ों को सम कर दिया है, एंड फाइनली यूजर को फिर से दिखा दिया है, right? A very basic JavaScript code. Guys, is that okay with you? Okay, got it. बहुत मतलब इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं, right? इसमें and ऐसे ही similarly we can have some while loop inside the script. हम चाहें तो एक while loop भी लगा सकते हैं. तो देखिए इस बार मैंने क्या किया, guys. मैंने एक स्क्रिप्ट के अंदर एक वाइल लूप लगाया है. कैसे लगाया है देखो जरा. हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, राइट? एंड सम इनिशियल में 0 है. बेसिकली द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस कोड इज कि हम यूजर से इनपुट लेते जा रहे हैं, और जब तक ऐड करते जाएंगे उन नंबर्स को, जब तक कि वो 0 नहीं डाल देता है, राइट? एंटर अ न्यू वैल्यू, नंबर डालते जाना है, और 0 टू एंड. 0 तब डालना है जब हमें उसको टर्मिनेट करना, राइट? तो अब ये देखिए हमने यही लूप लिख दिया कि while number is not equal to 0. और num क्या है? हम यूजर से इनपुट लेते जा रहे हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट, राइट? सो यहाँ से इनपुट आता जाएगा, num में आता जाएगा. अगर num 0 नहीं है तो while लूप चलाते रहो. while लूप चलाने का सिंपली पर्पज ये है कि हम उस नई वैल्यू को पुराने सम में ऐड करते जा रहे हैं, राइट? और इस तरीके से फाइनली जब उसने 0 पुट कर दिया तो लूप ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, एंड फाइनली वी शो द एंटायर कि वो सम क्या है, टोटल सम एग्जैक्टली क्या है, राइट? सो let me save this and run the code. And when we refresh the HTML page, it says enter new value, right? So 1 2 or 3 or 4 or 5 or something like ऐसे डाल दिया कुछ भी. फाइनली मैंने 0 ऐड कर दिया तो it will terminate the loop, and terminate loop करने के बाद फाइनली मुझे sum print हो गया.
guys, is that clear with everyone कि हमने किस तरीके से simple यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं using JavaScript, right? क्या ये ठीक है यहाँ तक गाइस? वाइल लूप सिंपल वाइल है, मतलब उसमें तो अब देखो छोटा मोटा सिंटेक्स है, बट ठीक है. लॉजिक एंड फिलॉसफी रिमेन्स द सेम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन है, चाहे जावास्क्रिप्ट है, और कोई और दूसरी लैंग्वेज है, राइट? इट डजंट चेंजेस. सो कुछ छोटा मोटा जरूर सिंटेक्स का चेंज हो सकता है इन दैट केस, बट दैट इज फाइन, राइट? उसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल वेयर व्हाट वी आर डूइंग. ओके, काम करते हैं. यहाँ पे देखो, समथिंग इज रिटन ओवर देयर, लेट मी शो इट टू यू. हमने यहाँ पे काम किया है स्क्रिप्ट के अंदर. आई हैव रिटन अ न्यू कोड हियर. सी दिस गाइस, हम क्या करें? वी आर asking for an input from the user, asking for a name, right? And यहाँ पे simply दो वेरिएबल लिए हमने, फर्स्ट और नेम, राइट? दोनों को एक साथ असाइन कर दिया है. सेम वैल्यू इज बीइंग असाइंड, राइट? देयर यू कैन सी. और उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे आ गए वाइल लूप में, इफ नेम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, राइट? और नेम नल नहीं है, राइट? और अब चेक कर रहे हैं, राइट? चेक कर रहे हैं कि भाई कौन छोटा या बड़ा है उसके हिसाब से, राइट? और अगर तुम्हारा जो नाम है, राइट, इस लूप में हम नाम लेते जा रहे हैं, नाम लेते जा रहे हैं, राइट? सो जो सबसे छोटा, लाइक अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले नंबर पे होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा. और प्रिंट नहीं करवा रहे हैं इस बार, ध्यान देने की जरूरत है. हमने इस बार अलर्ट को यूज नहीं किया है गाइस, हमने यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट. सो डॉक्यूमेंट का मतलब है दिस HTML पेज, राइट? और इस HTML पेज पे हमने क्या लिखना है? राइट को लिखते हुए हमें ये टेक्स्ट लिखना है. वी हैव टू राइट दिस टेक्स्ट, राइट? फर्स्ट नेम अल्फाबेटिकली, राइट? So guys, we are not giving the prompt this time, we are writing to the page directly. वो पेज पे दिखना चाहिए, not on the alert, right? So this is the way. हमने इनिशियल में जस्ट करते क्या जा रहे हैं, इनिशियल में तो दोनों ही वेरिएबल में सेम नाम दे दिया, बट बाद में लूप में अंदर रह करके हम यूजर से इनपुट लेते जा रहे हैं एंड जस्ट एक कंपैरिजन करते जा रहे हैं कि सबसे छोटा या सबसे अल्फाबेटिकली कौन सा नाम है. सो लेंथ वाइज नहीं, अल्फाबेटिकल के हिसाब से कंपैरिजन है. सो कौन सा है तो उसी को हम सबसे लास्ट में प्रिंट करने वाले हैं. सो लेट्स रन इट एंड सी क्या करें. एंटर द न्यू नेम, राइट? So that's a fast care. We say something Jaipur, then we say India, then we say something else, Corona, कुछ भी लिख दिया, ओके किया, राइट? और अब मैंने इसको एंटर मार दिया and there now you see guys, first name alphabetically is equal to Corona, right? तो ये जो चीज लिखी गई है ये HTML पेज पे लिख दी गई है. and how we can write dynamically using HTML on the HTML page using this method. That can be one method, dot write, वो पेज पे लिख देता सीधा, right? document dot write. So ये चीज है तुम्हारा that is one more way कि आप किस तरीके से चीजों को लिख सकते हो उसके ऊपर. यही है guys. is that okay? क्या ये चीज समझ में आई कि हमने document dot write को किस तरीके से यहाँ पे लिखा है, राइट? सो सिद्धांत इसमें कुछ नहीं है, हम लोग सिंपली यूजर से पहले हमने एक इनपुट लिया है, जो भी नाम ले लिया है, राइट? बस वो नाम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट? और अगर वो नाम जो ले लिया है वो हमने फिर वाइल लूप में चले गए हैं, राइट? और अब हर बार एक नया नाम लेते जा रहे हैं, राइट? तो पहली बार हमने जो पहली वैल्यू थी एक वेरिएबल में स्टोर कर ली थी फर्स्ट में, राइट? और नाम में तो वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है, राइट? और फर्स्ट में हमेशा उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं जो सबसे छोटी है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आने वाली चीज हमेशा किसके अंदर है? फर्स्ट के अंदर छिपी हुई है. इस काइंड ऑफ तुमने देखा होगा कि मिनिमम या मैक्सिमम निकालने का तरीका यही होता है, राइट? यूजर से इनपुट लेते जा रहे हैं, बस कंपेयर करते जाना है कि नई वैल्यू करंट वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, राइट? तो अगर मिनिमम निकालना है और ये चेक किया कि करंट वैल्यू से जो नई वैल्यू आई है वो छोटी है,
तो करंट वैल्यू में नई वैल्यू को असाइन कर देते हैं, अदरवाइज करते ही नहीं है, राइट। तो वैसा ही हो रहा है कि नई वैल्यू नया नाम पढ़ते तो जा रहे हैं और बस उसका कंपैरिजन करते जा रहे हैं कि हमारे पास पहले से जो सबसे सॉर्टेड नाम है अल्फाबेटिकली, उससे भी अगर सॉर्टेड आ गया है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दैट इज द केस। डिड यू गेट इट? यहाँ पे समझ में आया सिद्धांत नाउ, राइट? सो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज़ वन मोर मेथड, लाइक बहुत सारे मेथड होंगे एंड ओबियसली W3 स्कूल पे जाकर के तो मैं काफ़ी कुछ उसके बारे में देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द वन केस गाइस, राइट? सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक वैसा केस ही है। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे, यूजर्स इनपुट कैसे लेंगे, व्हाइल लूप कैसे लगाएंगे, फॉर लूप कैसे लगाएंगे, ये कैसे करेंगे, प्रॉम्प्ट कैसे दिखाएंगे, फलाना कैसे दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। But the important part is that every JavaScript code is inside the script tag, right? Script tag के अंदर ही है वो. That is one case. उसके बाद हम एक और चीज़ है जिसको हम एक बोलते हैं, समझो इस चीज़ को कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, वो किस तरीके से किसी भी HTML के कंटेंट को कैसे चेंज करती है, हाउ कम इट कैन चेंज द HTML कंटेंट. So there is a very simple logic around that, guys, right? A very simple logic around that. JavaScript, changes the HTML content or accesses the HTML content or sets the properties or reads the attributes or whatever, right? JavaScript का जो access है HTML में या CSS में, even it can change the CSS as well, right? So that happens through a kind of a concept that is called as DOM. इसको कहते हैं DOM, right? Document Object Model. Document, right? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको हम लोग बोलते हैं डॉम. व्हाट इज द डॉम, उसको समझिए यहाँ पे. डॉम का मतलब ये है कि हमारा जो जो HTML पेज है, इट इज वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, राइट? इट इज वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट इन मेमोरी एंड ये एक डॉक्यूमेंट ट्री रहता है हमेशा HTML का पेज जब भी डिस्प्ले होता है ब्राउजर के अंदर, राइट? दिस इज this is exactly happens here. This is your root node, इसका मतलब, राइट? एंड यहाँ से इट हैज़ टू सब एक तरह से चाइल्ड कह सकते हो. हेड एक चाइल्ड है, बॉडी एक चाइल्ड है. हेड के अंदर भी कपल ऑफ जो भी चीज़ें आप लिखते हो वो चाइल्ड बन जाती हैं. एंड सिमिलरली जितने भी आप यहाँ पे डिव लिख रहे हो, डायरेक्ट पैरा लिख रहे हो, डायरेक्ट LI लिख रहे हो, वो सब यहाँ जाता है. डिव के अंदर भी अगर H1 UL या P कोई भी कोई भी टैग आपने यूज किया है, फिर UL के अंदर भी LI मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी LI है. सो अगर तुम यहाँ पे देखो तो अगर मुझे इस LI पे कुछ चेंज करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? HTML डॉट बॉडी डॉट डिव डॉट UL and dot LI. Can you see this, guys, कि how we are reaching out to this LI आइटम और एनी अदर आइटम. जैसे वो ट्री ट्रेवर्सल करके हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, राइट? ट्री को ट्रेवर्सल करके वी रीच टू द रिक्वायर्ड नोड. एक तरह से आप ये मान सकते हो कि दिस इज द ट्री एंड एवरी एक तरह से यहाँ पे जो टैग है वो एक नोड की तरह काम कर रहा है. इट इज वर्किंग एज ए नोड, गाइज, राइट? एंड नोड तक रीच करने का रास्ता कहाँ से? रूट से ही है. सो नाउ यू हैव टू गो फर्स्ट टू दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, डॉट लगा लगा के, राइट? सो दैट इज द केस, गाइज. इज दैट क्लियर, गाइज, कि हम लोग जैसे इस इमेज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन गो टू HTML, then dot body, then dot this div and dot this a and then this, right? So this is the way, guys, कि हम इस तरीके से DOM मॉडल की अगर आपको समझ डेवलप हो गई तो then changing the any content using JavaScript is pretty much easy, right? DOM को आपने समझ, वो JavaScript में पूरा कॉन्सेप्ट ही DOM के थ्रू है. guys, is that clear? You saying yes, sir?
क्या ये क्लियर है सबको, समझ में आया? प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। अक्षिता गॉट इट, सौरभ, साहिल, सिद्धांत सिंह गॉट इट, ओके, दैट्स गुड। नाउ गाइस, एक मिनट, अब एक चीज को समझते हैं। मैं इस बार क्या करने वाला हूं, मैं एक डॉम का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हाउ इसको समझना, उस लॉजिक को समझना। अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, इसमें से इस सब चीज को हटा दिया, एवरीथिंग इज गोन आउट नाउ। देयर यू कैन सी देयर इज नथिंग इन माय एचटीएमएल, राइट? सिर्फ टाइटल में लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट लैब, राइट? और नाउ सी गाइस व्हाट आई एम डूइंग, राइट? इस लॉजिक को समझना ये डॉम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सी दिस कोड, क्या है ये? हमने एक फंक्शन लिखा है गाइस, दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट? उस फंक्शन का अभी तक कोई नाम नहीं है, सिर्फ फंक्शन है, और उस फंक्शन की बॉडी ये है, यहां से लेकर के यहां तक, राइट? और वो फंक्शन को जो हमने अटैच किया है कि वो फंक्शन कब कॉल होगा, उस इवेंट को हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया है, विंडो डॉट ऑन लोड। इसका मतलब जब तुम्हारा पेज लोड हो रहा हो ब्राउजर में, उस टाइम पर इस फंक्शन को कॉल करना है। दैट इज द सिंपल वे दैट ऑन लोड इज ए इवेंट। जब पेज लोड हो रहा है तो जो इवेंट अकर होती है उसको ऑन लोड इवेंट कहते हैं, राइट? इवेंट की कहानी आएगी, जिन लोगों ने एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग कर रखी होगी आई थिंक उनको थोड़ा सा आसान रहेगा इस चीज को समझना। सो जब हमारा ब्राउजर की विंडो जब हमारी लोड हो रही है, जब हमारा पेज लोड हो रहा है, उस टाइम पे जो इवेंट रेज होता है उसको कहते हैं ऑन लोड। और ऑन लोड पर हमें क्या करना है, उसके लिए हमने लिख दिया कि दिस इज द फंक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर देयर इज ए ऑन लोड। जब भी मेरा पेज लोड हो, प्लीज कॉल दिस फंक्शन। ओके, क्या कर रहे हैं इस फंक्शन में वो तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक तुमने देखा होगा कि हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ एचटीएमएल। मैंने किसी भी टैग को कुछ भी यूज नहीं किया, एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड दिस स्क्रिप्ट व्हिच इज अ जावास्क्रिप्ट कोड, राइट? एंड नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग गाइस, अ डॉक्यूमेंट, our HTML document, and there we are creating a element. तो अब मैं h1 एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ डायनेमिकली। ये पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये पेज में है ही नहीं कहीं पे भी, बट जब मेरा पेज लोड हो रहा है उसी टाइम पे बोला कि देख भाई एक HTML में मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना है। बोला कि कौन सा करूं, पैराग्राफ करूं, h1 करूं, h2 करूं, इमेज करूं, डिव करूं, क्या करूं आप बता दो। बोला भाई h1 क्रिएट कर दे। बोला ठीक है साहब, आपका h1 क्रिएट हो गया, उसका ये रेफरेंस यहाँ पे मिल गया है। सो हेडिंग इज योर रेफरेंस, सो इट क्रिएटेड me a h1 tag. So it's a kind of a कि memory object के अंदर memory allocate हो गई है अभी तक। यहाँ पे this is your document which is initially completely blank, right? और अब हमने यहाँ पे एक तरह से एलिमेंट क्रिएट किया है जिसमें क्या है, h1 टाइप है, उसका टाइप क्या है, h1 है, इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है। बट h1 में अंदर कुछ भी टेक्स्ट वेक्ट अभी कुछ नहीं है, सिर्फ h1 क्रिएट कर दिया है उसने कि भैया दिस इज योर h1 एंड मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड। ओके फाइन, क्या टेक्स्ट दिखाएगा, नो आइडिया। ओके गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, अगेन वी आर सेइंग गो टू द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट टेक्स्ट नोड। इस बार टेक्स्ट नोड बनाओ और उसमें क्या लिख दो, बिग हैड। सो राइट दिस मैसेज। सो अब यहाँ पे एक और काम हो गया है कि एक और नोड बन गया है, राइट? वो टेक्स्ट नोड है और उसमें इनसाइड हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया। ओके, अभी ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, राइट? अभी h1 अलग है और टेक्स्ट अलग है, राइट? अब हम जो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हमने कहा है कि जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग क्या था, हमारा h1 का एलिमेंट, उसमें हमने ये कहा है कि यार हमें अपेंड चाइल्ड करना है, मतलब उसका एक चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, जैसा ट्री के डेटा स्ट्रक्चर में जाके ध्यान लगाओ, राइट? सो वी आर क्रिएटिंग अ चाइल्ड। बट बोला चाइल्ड है कहाँ, बोला सर मैंने क्रिएट कर रखा है, देखो ये रहा चाइल्ड, मैंने टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रखा है। तो अब हमने क्या किया, using the third statement append child here guys, what we did, we connected, so we create a child now. So अब इसका child हो गया, तो ये तो बन गया parent,
और ये हो गया इसका चाइल्ड, राइट। सो रिलेशनशिप सेट हो गई। तो इसका मतलब अब टेक्स्ट किसका हिस्सा बन गया है, H1 का हिस्सा बन गया। ओके, आई गॉट इट, राइट। एंड फाइनली हमने क्या किया, अब उस हेडिंग को भी किसके अंदर छापना है, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एचटीएमएल में भी किस में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाकर के हम बोलेंगे कि भैया H1 को अपेंड करना है। तो अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे अब कहानी ये हो गई है कि हमने इस हिस्से को भी, इस पूरे हिस्से को बना दिया और इसको भी किसके अंदर चिपका दिया, बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट में दो हिस्से होते हैं। यू हैव अ डॉक्यूमेंट हियर, वन इज व्हाट, हेड, एंड द अदर वन इज बॉडी। हमें किस में जाना है, बॉडी में जाना है। बॉडी में क्या किया, H1, और H1 पे भी क्या कर दिया, टेक्स्ट नोड, राइट। सो दिस इज ऑल डायनेमिक। देखो हमने पूरा ये डायनेमिकली क्रिएट किया था, जैसे काइंड ऑफ मेमोरी एलोकेशन, जैसे मैलॉक वैलॉक करते हो ना आप सी प्रोग्रामिंग में, वैसा हुआ है यहाँ पे कुछ कि H1 के लिए मैलॉक किया, राइट, और फिर हमने टेक्स्ट नोड के लिए अलग से मैलॉक किया, और उस टेक्स्ट नोड को हमने H1 का पेरेंट, H1 का चाइल्ड बना दिया यूजिंग अपेंड चाइल्ड। मैं चाइल्ड अपेंड भी कर सकता हूँ, मैं चाइल्ड रिमूव भी कर सकता हूँ, डायनेमिक है पूरा। और वहां पे क्या टेक्स्ट या क्या इमेज या क्या बनाना था वो मैंने बना दिया, और फिर इन दोनों को एक साथ क्लब करके मैंने यहाँ पे उसमें बॉडी में भी। सो आई जस्ट सेट अप ए रिलेशनशिप कि भाई हमेशा मुझे ये ध्यान रखना है कि यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स आई कैन सेट दिस मैकेनिज्म, राइट। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। तो ये एक तरह से डायनेमिक क्रिएशन है कि हमने, राइट, जो अभी तक कुछ भी नहीं। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं सिंपली यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे H1 टैग लेता, राइट, H1 में टैग लेता और यहाँ पे मैं लिख देता बिग हेड, राइट। तो ये स्टैटिक क्रिएशन है, राइट। उसी का अगर डायनेमिक वर्जन चाहिए तो आपको ये कहानियां करनी पड़ी हैं, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इफ यू वांट टू डू इट ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई कहते हैं इसको, ऑन द फ्लाई मतलब रन टाइम पे, राइट। सो ये चीज हमने स्टैटिक नहीं की है, अब हम इसको डायनेमिक कर रहे हैं। एंड वंस वी डू इट गाइस, राइट, and then let's save it guys, इसको हम एक बार सेव करते हैं and see this, we refresh it and then you get it big hat, right। so हम इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते थे, हमें कलर कुछ और चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, तो डॉट ऑपरेटर लगा के स्टाइल तक भी पहुंच जाते, स्टाइल में चेंज कर देते, असाइनमेंट कर देते नई, डिफॉल्ट तो ऑब्वियसली ये है। सो इस तरीके से नाउ यू कैन सी दिस गाइस कि हम पूरा किस तरीके से एक डायनेमिज्म लेके आ रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्या गाइस ये फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग दिस गाइस कि अभी तक जो सब कुछ स्टैटिक था, नाउ यूजिंग जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज बिकम डायनेमिक। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में जो जो पावर जो इस दी है जावास्क्रिप्ट ने, वो इसकी वजह से है क्योंकि वो सब कुछ रन टाइम पे कर सकती है, इट कैन चेंज एवरीथिंग ऑन द रन टाइम। एक बटन क्लिक पे, पेज लोड पे, पेज माउस के क्लिक पे, हर इवेंट है वहां पे, राइट। स्टैटिक का मतलब तो ये होता है सिद्धांत कि हमने पहले से ही वो लिखा हुआ था पेज में, लोड होते ही वो दिखेगा सबसे पहले। स्टैटिक तो मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है कि जैसे एक तो सी प्रोग्रामिंग का अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है, राइट, एक तो मैं एरे डिक्लेयर कर दूं, राइट, एक तो मैं कोड में जाऊं और मैं यहाँ पे लिख दूं इंट ए 100। एक तो ये तो हो गया स्टैटिक डिक्लेरेशन है कि यू नीड 100 लोकेशंस टू स्टोर इंटीजर, राइट। और एक ये हो गया कि भैया इंट पॉइंटर p इज इक्वल टू मैलॉक, एंड मैलॉक में कितना चाहिए कि साहब 100 इंटीजर्स की वैल्यू चाहिए, तो 100 इंटू 4, इतना। अगर एक इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, ये इसी का इक्विवेलेंट है, ये डायनेमिक कहलाता है। दिस इज ऑल डायनेमिक, राइट। ये स्टैटिक वर्जन, स्टैटिक एलोकेशन है, एंड देन दिस। तो लेकिन ये तो नॉर्मल, अगर अगर सिद्धांत तुम समझो कि ये जो कोड लिखा हुआ है इट्स नॉर्मल। गाइस डू यू गेट इट कि डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब क्या है, राइट। ये चीज है, डायनेमिक का मतलब होता है कि जब हमारा कोड रन हो रहा है उसी टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं, उसी टाइम पे कुछ हो रहा है। और एक हो रहा है कि हम ऑलरेडी कोड में पहले ही लिख चुके हैं, तो कंपाइलेशन हो करके या एग्जीक्यूशन जो उसका हो रहा है वो पहले से प्री सेट है। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक के केस में ये सब चीजें ऑन द फ्लाई हो रही हैं, इसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं। गाइस डू यू गेट दिस आइडिया, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक?
गाइस समझ में आ रहा है ये चीज, डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक? मानसी, अक्षता, विकी, सिद्धांत एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि तुमने रेलवे का कुछ कहीं जाना है, तुमने रेलवे की टिकट करवाई, बुक करवाई और सीट कंफर्म हो गई। सो नाउ यू हैव ऑलरेडी एवरीथिंग इन विद यू कि कौन से बोगी में कौन सा सीट नंबर तुम्हारा है। सो दैट इज काइंड ऑफ ए स्टैटिक अलोकेशन व्हिच हैज हैपेंड, राइट? एंड देयर इज वन मोर केस वेयर लाइक तुमने जब अलोकेशन किया, रिक्वेस्ट मारी तो वेटिंग में आया तुम्हारा, और वेटिंग में भी तुम्हें फाइनल चार्ट बनने तक सीट्स नहीं मिली है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, राइट? अब क्या है, तुम सीट मतलब ट्रेन में चढ़ तो गए, अब टीटी को कांटेक्ट किया जा करके, टीटी ने कुछ देखा कि कौन आया क्या हुआ, और उसने फाइनली तुमको एक सीट एलोकेट कर दी कि अरे देखो एक सीट अवेलेबल है और दिस इज फॉर यू नाउ। दैट इज अ डायनेमिक एलोकेशन। अब उस सीट का तुम्हें डायनेमिक एलोकेशन हो गया, तुम्हें पहले से नहीं पता था, राइट? जब ट्रेन चल पड़ी है, सब कुछ हो गया है, तुम्हें पहले से कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारी सीट कहाँ मिलेगी, राइट? किसी भी बोगी में, किसी भी जगह, कहीं पे भी मिल सकती है, एक स्टेशन के बाद मिल सकती है, दैट इज द काइंड ऑफ अ डायनेमिक एलोकेशन दैट हैपेंड फॉर यू ड्यूरिंग दैट जर्नी। अब समझ में आया सिद्धांत? ओके, सो यही चीज यहाँ पे हुई है। उसके बाद लेट्स सी कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स नाउ गाइस, कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, और थोड़े से हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे स्क्रिप्ट में। एक तो डॉट ऑपरेटर लगा करके हम जा ही रहे हैं, तुमने देखा होगा यहाँ पे राइट कि यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम किसी भी चीज तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमारे पास डॉम का केस है, राइट? वी नो द डॉम, राइट? सो यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन रीच आउट टू एनीथिंग। अब कुछ और केसेस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सी दिस, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। Let's see a couple of examples here. जरा ये देखो, let's see one example I think I can give you is this. अच्छा, along with the dot operators, right? हम चाहें तो डॉम में 4 तरीके के मेथड्स हैं जो हमें जानने चाहिए। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेस एनी टैग, राइट गाइस? उसको जरा देखो, 4 मेथड कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू और नई वैल्यू उसमें सेट भी कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं, वो किस तरीके से? 4 मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक तो मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट? सो अगर आईडी हमें मालूम है तो हम डायरेक्टली गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, डॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर दो। दूसरा हम टैग नेम से भी सर्च कर सकते हैं, गेट एलिमेंट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो क्या करेगा कि जितने भी HTML में लेट्स से टैग आपने बताया कि भाई जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको ढूंढ के लाओ, तो वो सबको ढूंढ के ले आएगा, सबका रेफरेंस आपको दे देगा कि भैया ये लो रेफरेंस, और अब जो भी करना है वो कर दो, अब तुम्हारे हाथ में जो भी करना है, पॉइंटर दे दिया एक तरह से उसको, राइट? ऐसे ही हम किसी का एट्रीब्यूट पढ़ना चाहते हैं तो गेट एट्रीब्यूट मेथड है, और एक हमने पढ़ा है सेट एट्रीब्यूट। तो अगर आपको सिर्फ पता करना है कि भाई क्या कलर है, क्या नहीं है, क्या फॉन्ट है, तो गेट एट्रीब्यूट कर दो। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो सेट एट्रीब्यूट कर दो, राइट? गेट एलिमेंट बाय आईडी, सो अगर आपने आईडी दे रखा है किसी भी टैग को तो आप वहां तक आईडी से पहुंच जाओ। अगर आईडी नहीं है, नाम से पता करना चाहते हैं, तो एक तो ये हो गया कि भाई सबका रोल नंबर यूनिक है, तो मानसी का क्लास में क्या रोल नंबर है, बस मैंने रोल नंबर बोला और मानसी का एक तरह से रिकॉर्ड मुझे मिल गया। एक हो गया कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो एक तरह से मैंने बोला कि भाई मानसी, मैंने नाम बोला है तो मानसी हो सकता है क्लास में 4 या 5 हो,
तो सब चारों पांचों मानसीज का मुझे एक्सेस मिल जाएगा, उनका जो भी रिकॉर्ड है वो मुझे मिल जाएगा एक एरे में, राइट। 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो एक तो बाई आईडी विच इज यूनिक ऑलवेज, एक है बाई नेम, नाम में रिपीटिशन हो सकता है, कई सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, कई सारे H1 हो सकते हैं, कई सारे इमेजेस हो सकती हैं। तो टैग नेम से हमें मल्टीपल जितनी भी उस पेज में वो चीज़ें हैं वो सब हमें वहाँ पे मिल जाती हैं। तो इन चार मेथड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है गाइस, राइट। कौन सा? गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स, ध्यान रखना एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स है, बिकॉज टैग नेम से एक से ज़्यादा रेफरेंस मिल सकते हैं। फिर गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट, राइट। इस तरीके की चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा तुमको ये हो क्या रहा है। नई चीज़ है ना, तो अभी एकदम हो सकता है थोड़ा बहुत तुम्हारे पॉइंटर्स हिलने लग जाएंगे। सो कोई बात नहीं, लेट मी टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सो सी दिस, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह एक छोटा सा कोड यहाँ पर डाला हुआ है। देखो जरा यहाँ पे क्या है, एक HTML पेज है, वेरी सिंपल बेसिक HTML, राइट। सो टाइटल हमने सेट कर दिया फास्ट टेक्नोलॉजीज। अब मैंने यहाँ पे देखो बॉडी है, और बॉडी को मैंने आईडी दे दी है, राइट। आपको ध्यान है कल भी हमने आईडी दी थी, ठीक है। तो मैंने आईडी दे दी है, यहाँ पे आईडी का नाम दिया मैंने डेमो। सो डेमो इज द आईडी फॉर विच बॉडी, पूरे बॉडी सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। बट अभी फिलहाल तुम देखो कि इस बॉडी सेक्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, देयर इज नथिंग रिटन देयर, राइट। तो अगर तुम इस चीज़ को यहाँ पे फिलहाल इसको मैं कट कर दूँ और इसको सेव करूँ, तो तुम अगर पेज पे देखोगे, सो नथिंग इज देयर, देयर इज नथिंग, राइट। इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, बिकॉज उस टाइम पे कुछ है ही नहीं वहाँ। और अब मैं स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक छोटा सा कोड मैं लिखने वाला हूँ, राइट। एंड व्हाट इज दैट, सी दिस गाइस। यहाँ पे तुम देखिए, देखो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। सबसे पहले तो ये पहली लाइन है, राइट। इस पहली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे सेक्शन का, बॉडी सेक्शन का एक्सेस लेके आया हूँ, राइट। सो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो उसने बोला कि आईडी तो बता किसको दूं यार, किसका रेफरेंस चाहिए तुझे। तो मैंने बोला यार मेरा आईडी तो डेमो है, उसका रेफरेंस चाहिए। बोला ओके, नाउ यू हैव द डेमो हियर, राइट। इसके अंदर है। अब इस बॉडी के अंदर आपको मालूम है जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमें HTML पेज पे दिखाई देता है। तो अगर हमें कुछ टेक्स्ट इस पे दिखाना है तो डॉट इनर HTML करके एक प्रॉपर्टी होती है। सो इस रेफरेंस से डॉट लगा के इनर HTML पे चला गया, और इनर HTML पे जाकर के मैंने ये एक छोटा सा HTML लिख दिया। HTML है, ध्यान रखना गाइस, डबल कोट में तो दिख रहा है लेकिन अंदर HTML है, क्योंकि HTML क्यों बन गया है, ये है तो स्ट्रिंग लेकिन टैग पी यूज किया हुआ है। सो इसका मतलब हम एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, किस जगह, बॉडी में, यूजिंग विच प्रॉपर्टी, इनर HTML, राइट। मैं चाहूँ तो H1 भी ऐड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो H2 भी ऐड कर सकता हूँ। सो दिस एड्स दिस गाइस, राइट। तो यहाँ पे हमने इनर HTML में जो अभी तक कुछ भी नहीं है, राइट, इट इज कम्प्लीटली ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमने एक नया पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो कैसे लिखा, सबसे पहले डेमो से हमें उसका रेफरेंस मिल गया यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और फिर हमने डॉट इनर HTML मेथड को यूज करते हुए वहां पे जो भी लिखना चाहते थे, चाहे तो हम हम इमेज इंसर्ट कर सकते थे, चाहे तो हम यहाँ पे कुछ H1 H2 जो भी करना चाहते थे वो आप कर सकते थे। सो लेट्स सेव दिस गाइस, and now you see this is dynamic content created by inner HTML property, राइट। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो क्या हम इसको दूसरा कुछ कर सकते थे, क्या हम इसको H1 में लिख सकते थे, ऐसा होता तो let's see if that is the case। तो क्या इससे कुछ चेंज होता, yes, now it got changed, right। so क्योंकि inner HTML जो है, सो इनर HTML से हम यहाँ पे कुछ भी, गाइज समझ में आया कि हमने किस तरीके से, अब सिद्धांत तुमको समझ में आ गया होगा कि पहले तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था वहां पे, देयर वाज नथिंग रिटन, राइट। बट हमने उसका रन टाइम पे एक्सेस लिया, पकड़ा, उसको पकड़ के उसके इनर HTML प्रॉपर्टी को देखा और वहां पे एक नई वैल्यू सेट कर, और वो सेट होती है हमें वो दिखने लगी वहां पे। अभी पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, देयर इज नथिंग रिटन हियर, राइट। सो गाइज क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब मैं कुछ कुछ लॉजिक्स, मतलब हर चीज को नहीं बता रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द फिलॉसफी दैट हाउ
पावरफुल द जावास्क्रिप्ट इज, राइट, कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट ने तुम्हें क्या टूल्स दिए हैं, क्या फिलॉसफी दी है जिसको यूज करते हुए आप लोग जो है इस चीज को देख पा रहे हो कि क्या हुआ है. गाइस, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? राइट, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक दो चीज़ों को और देख लेते हैं क्विकली. राइट, अब मैं उस फाइनल चीज़ पे पहुंच गया हूँ. व्हाट इज दैट? ओके, सी दिस. अब मैं एक फाइनल कोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मैं इस चीज़ को देखना. सी, देखो ज़रा, HTML है, ठीक है. HTML में बॉडी है, हेड अभी डाला नहीं है, ठीक है. बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ मैसेज लिख दिया है. फिर हमने एक और पैराग्राफ बनाया है जिसका आईडी दे दिया डेमो, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. इफ यू सी, राइट, देयर इज नथिंग रिटन. ओके, गॉट इट. एंड नाउ विद इन द स्क्रिप्ट गाइस, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी. एक स्क्रिप्ट लिखी है अंदर. क्या लिखा है सब स्क्रिप्ट में? अब हम चाहते हैं, राइट, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड तब रन होना चाहिए जब पेज पे कुछ एक्शन हो रहा हो. राइट, मेरे जावा स्क्रिप्ट का कोड अभी तक कैसे रन होता था? जैसे ही पेज लोड होता था वो हैंड टू हैंड रन हो जाता था स्क्रिप्ट. लेकिन मैं ऐसा नहीं रन करना चाहता. राइट, मैं क्या करना चाहता हूँ? राइट, वैसे अगर आप देखो तो अंदर क्या लिखा हुआ गाइस? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, हेलो फ्रॉम फॉस्क. यही चीज, राइट, देखो यहाँ पे क्या है गाइस. अभी अभी अगर आप देखो इस चीज को, काम करो. राइट, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ. and see this, right, and let me remove this part. This part को remove कर देते हैं यहाँ से. See this guys, कहाँ पे है? oh, see, control Z. so I think here up to here guys, this is there. यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट करता हूँ. ओके, गॉट इट. अच्छा, उसकी भी जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे तुम देखो, ये तो नॉर्मल केस है जो अभी हम देख ही रहे थे कि भाई मुझे इस पैराग्राफ में एक हेलो मैसेज लिखना है. तो ये तो पेज लोड होते ही दिख जाएगा. यहाँ पे देखो, लोड होते ही दिख गया. दिस इज देयर, राइट. ये तो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट एंड दिस. तो ये तो एक तरह से ऑन पेज पे जैसे पेज लोड हुआ मुझे मिल गया. मुझे वो नहीं चाहिए. हम तो चाहते हैं कि यार मेरा ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट अभी फिलहाल दिख रहा है, ये तभी दिखना चाहिए, राइट, जब गाइस मेरा पेज पे कोई क्लिक करे. मेरे पेज पे कोई क्लिक करे तभी मुझे वो टेक्स्ट दिखना चाहिए जो अभी फिलहाल पेज लोड होते ही दिख जाता है, राइट. तो इसीलिए हमें एक इवेंट लिसनर जिसको कहते हैं ना, यार एक काम करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में एक इवेंट लिसनर नाम की प्रॉपर्टी होती है. उसको बोलना पड़ता है कि देख भाई, जब कोई क्लिक करे ना मेरे पेज पे, बोला सब क्या इवेंट? क्लिक इवेंट. बोलो क्लिक इवेंट तो मैं जानता हूँ, जब आएगी तब मैं बता दूंगा आपको कि आ गई ये क्लिक इवेंट. बोले यार क्लिक इवेंट जब आ जाए ना, तो एक काम करना, इस फंक्शन को कॉल कर देना. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ लिंकेज गाइस, राइट, कि जब क्लिक हो तभी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, वरना एग्जीक्यूट करना ही मत. तो इसके लिए हमें इवेंट लिसनर्स चाहिए होते हैं. इवेंट लिसनर्स कहते हैं ये हर जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे एंड्रॉइड का जिसको नॉलेज है उसने भी इवेंट लिसनर वाली मैकेनिज्म सुनी होंगी. इवेंट लिसनर मतलब देयर इज सम मॉड्यूल, सम kind of a tool which is just waiting for something to happen. और जैसे ही वो होता है, राइट, उसको नोटिफिकेशन पहुंचता है कि अरे किसी ने क्लिक कर दिया. बोलो क्लिक कर दिया तो क्या करूं? बोले इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दे. ओके, तो अब देखो हमने जब इस पेज को लोड किया, तब लोड पर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग, राइट. और जब मैं क्लिक करूंगा तब उसको इवेंट मिलेगा. इवेंट मिलेगा तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल होगा, और करस्पॉन्डिंग फंक्शन में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, राइट. तो देखो यहाँ पे, सो इस तरीके से जैसे मैंने क्लिक किया, वो मुझे वापस से, मैं देखो यहाँ पे किया और मैंने क्लिक किया, लेट्स सी दिस, राइट. तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे हुई है. हम चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं. वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आसान है.
लिखना तो इवेंट लिसनर ही पड़ेगा कि क्लिक करते ही बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। सो क्लिक करते ही अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, वी कैन राइट द कोड दैट वे। हमने क्या किया, इवेंट लिसनर ऐड कर दिया। क्या किया, क्लिक पे क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन में देखो क्या गए अंदर, डॉक्यूमेंट, राइट। इस बार तुमने ध्यान से देखो तो गाइज मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं किया है। मैंने किसके थ्रू गया हूँ, डॉट ऑपरेशन के थ्रू गया हूँ। मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी ना करके डॉट के थ्रू, जैसे ट्रेवर्सल होता है कि रूट से चालू करूंगा फिर वहां से वहां पहुंचूंगा फिर वहां से वहां पहुंचूंगा। इस बार डायरेक्ट जंप नहीं किया मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी, अदरवाइज वो भी कर सकता था, राइट। सो डॉक्यूमेंट से बॉडी पे पहुंचा, बॉडी में जाकर के स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर छुपा हुआ है और वहां पे मैंने रेड मार दिया। So now you see guys, when I click on the page, right, which is initially by white background, right, initially by, जैसे मैं click करता हूँ it went to red। जैसे ये मैंने click किया, so ये event listeners का बहुत बड़ा कमाल है जावास्क्रिप्ट में। जैसे किसी बटन पे click करेंगे तो उसका इवेंट मिलेगा, और उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे वो इवेंट अगर मिल गया तो बस वो ज्वाइन करा दो कि भाई इस क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट। लोड हो रहा है तो ये होना चाहिए, कोई स्क्रॉल करेगा तो ये ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। हर इवेंट हमें मिल रही है, बस वो कनेक्शन हमें सेटअप करना है, वो मैप हमें करना है कि इस इवेंट पे, इस क्लिक पे इवेंट लिसनर को कौन सा फंक्शन कॉल करना है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे इसके थ्रू है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, राइट। सो वेबसाइट को लाइव डालने का केस सिल्वेस्टर सर बताएंगे सक्षम, तो वो बताएंगे आपको कि कैसे। आई थिंक सेसा ने भी ये सवाल आज सुबह किया था। So let me take final example from JavaScript now। एक और example ले लेते हैं। See this, देखो यहाँ पे एक final example है guys आज का, ये रहा यहाँ। See this, ये पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और इस बार हमने, ठीक है, यहाँ पे 3 इवेंट लिसनर्स लगाए हैं। 3 इवेंट लिसनर, तीनों इवेंट लिसनर्स का क्या काम है, एक इवेंट तो जब माउस ओवर हो, जैसे माउस पेज के ऊपर लेके आए तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है, माई फंक्शन। वो फंक्शन कहाँ लिख दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। जब कोई क्लिक करे तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, माई सेकंड फंक्शन। तो माई सेकंड फंक्शन क्या करेगा, वो यहाँ लिख दिया गया है। माउस आउट, जब माउस को लेके जा रहे हैं, पेज से बाहर लेके जा रहे हैं, राइट। सो माई थर्ड फंक्शन, तो माई थर्ड। तो एक तरह से तुम देखो हमने एक ही पेज पे 3 इवेंट लिसनर्स लगाए हैं। 3 इवेंट लिसनर्स में तीनों अलग अलग इवेंट हैं, राइट। इन इवेंट्स की लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी W3 स्कूल पे कि जावास्क्रिप्ट में हमें कौन कौन से इवेंट मिल सकते हैं। लॉन्ग प्रेस मिल सकता है, डबल क्लिक मिल सकता है, सिंगल क्लिक, स्क्रॉल मिल सकता है, दुनिया भर के जो भी तुम अपने माउस से कर सकते हो या कीबोर्ड से कर सकते हो, वो सब चीजें हैं। सो नाउ अब देखो गाइस, राइट, ये मैपिंग है। दिस इज द मैपिंग कि किस इवेंट पे क्या कॉल होना चाहिए, और कॉल में क्या लिख दिया है, वो फंक्शन यहाँ लिख दिया। देखो ये फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे, राइट। तो एक तरह से तुम देखो तो गाइज ये एक तरह से वैसा केस हो गया, वो जैसे मैप में करते थे ना कि जब ये डेटा है तो ये कॉल होना चाहिए, राइट। सो फंक्शन कॉल लिख दिया हमने यहाँ पे, और अब हमारी 3 इवेंट्स हो रही हैं एंड टू एंड सी दिस, राइट। देखो माउस को मैं जब मैं लेके जा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, क्लिक क्लिक अभी तक मैंने किया नहीं है, राइट। क्लिक किया, देखो क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक 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 क्लिक। सो नाउ यू कैन सी दिस। सो दैट इज द केस गाइस, राइट। सो ये चीज यहाँ पे है गाइज। अगर मैं एक क्विक ओवरव्यू करूँ तो आज के सेशन से आपको क्या चीज समझ में आई है, राइट। सो उस चीज को समझिए आप यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस, राइट। यहाँ पे एक बार हम क्विक इसको देख लेते हैं, सी दिस। यहाँ ओके, सी दिस गाइस। तो आज हम जो चीज को समझ रहे थे, वो चीज को समझना ऐसे है कि सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में एक तो केस वो नॉर्मल केस है
जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि सब यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, यूज़र को आउटपुट कैसे देंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होगा, राइट, लूपिंग कैसे लगाएंगे, इफ एल्स कैसे लगेगा, नो ब्ला 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 ब्ला, सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। आपने देखा होगा कि हम प्रॉम्प्ट ले रहे थे यहाँ पे, राइट, हम अलर्ट ले रहे थे यहाँ पे, राइट, आपने देखा हो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया, आपने देखा हमने वाइल को कैसे यूज़ किया, आपने देखा इफ को कैसे यूज़ किया, कपल ऑफ थिंग, कॉन्कैटिनेशन कैसे हुए, राइट, टाइप कास्टिंग कैसे हुई, राइट, वो सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखी, तो वो तो नॉर्मल पार्ट है, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि भाई यूजिंग जावा स्क्रिप्ट आप जो है HTML कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, HTML पेज को चेंज कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज एवरीथिंग दैट यू हैव यूजिंग DOM मॉडल, राइट। और जब हमने DOM मॉडल की बात की तो मैंने तुमको बताया कि भाई डॉक्यूमेंट से डॉट बॉडी पे जा सकते हैं, बॉडी से डॉट स्टाइल पे जा सकते हैं, स्टाइल से बैकग्राउंड कलर पे जा सकते हैं, फॉन्ट पे जा सकते हैं, राइट, एंड उसके हिसाब से आप चीज़ें रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, मतलब पहले से क्या सेट है वो भी पता कर सकते हो, नया सेट करना है तो वो क्या कर सकते हो। और फिर डॉम में एक और जो मैंने चार चीज़ें आपको बताई थी कि 4 मेथड्स हैं प्राइमरी, कौन सा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट तक डायरेक्ट जंप मार सकते हैं विदाउट डॉट, और एक है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, राइट, ये है टैग नेम में पूरा एरे मिलता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं। फिर कौन सा था, सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट, राइट। और फिर एक फाइनल मैंने चीज कॉन्सेप्ट वो बताया था, वो कॉन्सेप्ट था गाइस इवेंट लिसनर का, इवेंट लिसनर, राइट। इवेंट लिसनर से हमें क्या एक मैपिंग मिल जाती है कि भाई जब ये इवेंट हो, राइट, तो ये फंक्शन कॉल कर दो, वो फंक्शन हमें खुद को लिखना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे है, और आप चाहें तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे वैसे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, राइट, यहाँ पे गूगल आउट, राइट, JS इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल, शायद इससे मिल जाएगा क्या क्या इवेंट्स हो सकती हैं पेज पे, ऑन लोड हो सकती है, ऑन क्लोज हो सकती है, माउस ओवर हो सकती है, राइट। सो दीज ऑल इवेंट्स कैन बी देयर। So see this guys, what are the events that can happen, right? So on click तो obviously यहाँ पे है ही, देखो यहाँ पे कुछ कुछ इवेंट्स हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, राइट। सो लिस्ट बहुत बड़ी है, बट कपल ऑफ देयर, राइट। सो ये सारी इवेंट्स वहाँ पे आप हैंडल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकते हैं, राइट। See this guys, there are so many इतने सारे कहानियाँ हैं, राइट, इतने सारे इवेंट्स हैं, राइट, जिनको आप हैंडल कर सकते हो, राइट। सो गाइज इज द लॉजिक, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स जावास्क्रिप्ट के लिए, क्या कुछ क्लैरिटी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के अराउंड आई कि जावास्क्रिप्ट को कैसे, कहाँ पे, क्यों यूज किया जा रहा है, और उसके थ्रू आप क्या अचीव कर सकते हो इन वेब डेवलपमेंट। गाइज, डिड यू गेट सम क्लैरिटी अराउंड दैट टुडे? बताएं गाइज। यस सर, आई हैव समथिंग टू अनाउंस यू गाइज, मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है, सिल्वेस्टर सर ने मुझे दिया है, राइट। उससे पहले कपल ऑफ थिंग्स आपको ध्यान हो, हमने डीप लर्निंग में भी काफ़ी चर्चा की थी उसकी, और मशीन लर्निंग में भी काफ़ी चर्चा की थी,
and that concept was overfitting and underfitting, right? Overfitting and underfitting, guys. Overfitting and underfitting. तो ओवरफिटिंग को हैंडल करने के एमएल में और डीएल में अलग अलग रास्ते हैं. डीप लर्निंग में जो फॉलो करते हैं वो कॉन्सेप्ट कहलाता है ड्रॉप आउट. सो ड्रॉप आउट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन हैंडल ओवरफिटिंग. एमएल में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है गाइस वो कहलाता है रेगुलराइजेशन, राइट? एंड रेगुलराइजेशन में भी 3 तरीके के रेगुलराइजेशन अप्लाई किए जा सकते हैं. लासो, रिज, राइट, एंड elastic net. Elastic net is a combination of both lasso and riz, right? तो छोटा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शन है तो मैं कि भाई हम किस तरीके से, ऑब्वियसली scikit-learn में इनका सपोर्ट है. वी कैन अप्लाई these in scikit-learn. We can apply lasso and we can apply the riz as well, and ये सब चीजें हैं. So इसका एक सैम्पल कोड हम लोग कल ऐड कर देंगे. If you want you can get it on the Google Drive, guys, right? So वहाँ पे कैसे how come you can apply lasso and riz. So applying ये algorithm तो मालूम है कोई बहुत ज़्यादा difficult नहीं है in case, right? So that is the case, guys. So guys, क्या web applications में मज़ा आया? web sessions में I think ठीक है, वो मेरे हिसाब से अभी अपलोड करवा देंगे. अभी सिल्वेस्टर सर कोड अपलोड कर देना इनका, है ना? सो कौन सा वाला कोड सर? एक तो कल वो HTML CSS वाला कर दिया ना सर, डे 28 में है पड़ा हुआ. क्या सक्षम चेक नहीं किया कि तुमने वहाँ पढ़ा भैया? डे 28 में आज वाला भी है, ये भी डे 28 में, राइट? सो ये एक राइट. उससे पहले एक बार चेक कर लेना सक्षम. उससे पहले गाइस एक चीज है, एक अनाउंसमेंट है. एक तो सर सिल्वेस्टर सर कुछ लोगों का सवाल था कि वो लाइव वेबसाइट कैसे हाँ, तो उसका वो पाइथन एनीवेयर है, मैंने शेयर कर दिया, एक वीडियो भी शेयर किया है. और सबसे अच्छा तरीका कि पाइथन एनीवेयर करें, या फिर वो कोई ना कोई AWS, हीरोको, गूगल क्लाउड, कोई भी काम में ले सकते हैं. और आर्टिकल्स है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद रिसर्च करें, उस पर पहुंचे उस पर सर. हेलो, ओके, गॉट इट ना, मैंने शेयर कर दिया ऐसे लिंक्स, उनको बच्चे दोनों रेफर कर सकते हैं. ओके. उसके बाद गाइस, उसके बाद एक और चीज है. हम एक लाइव प्रोजेक्ट की गाइस एक सीरीज लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में. प्लीज ऑल लिसन केयरफुली, राइट? एक आर्मी ऑफिसर है गाइस. प्लीज लिसन माय स्टोरी फर्स्ट. देयर इज अ आर्मी ऑफिसर, राइट? और उस आर्मी ऑफिसर के पास he has got some actual data related to terrorism का डेटा उनके पास है. एंड दैट डेटा इंक्लूड्स कि कब पिछले 15-20 सालों में कब कहाँ पे कैसा टेररिज्म अटैक हुआ, राइट? किस तरीके के अटैक्स हुए, क्या हुआ क्या नहीं. सो एवरी डिटेल हैज बीन देयर इन दैट डेटा, राइट? एंड नाउ to start with, that army officer has shared a kind of a sample, और थोड़ा सा उस डेटा को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया है. वो डेटा एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली नहीं है, और उस डेटा को शेयर किया है हमारे साथ. वो बोला कि आई वांट योर पीपल टू वर्क ऑन दिस फॉर मी, राइट? एंड इफ आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद, राइट, आई कैन शेयर द एक्चुअल डेटा विद देम एज वेल, राइट? सो ये एक टेररिज्म एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट है. द आर्मी ऑफिसर हैज गिवन अस दिस प्रॉब्लम गाइस, राइट? और इसको हम लोग प्रोजेक्ट सीजन कह रहे हैं, राइट? दिस इज अ प्रोजेक्ट सीजन, राइट? और यहाँ पर इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन दिस,
राइट अगर आप इसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं, ओबियसली पाइथन, एमएल, डीएल, एआई, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक पार्ट इन दिस, राइट। ये करीबन 1 वीक का प्रोग्राम है गाइस, राइट, एंड इट इज कंप्लीटली अ प्रोजेक्ट वर्क, राइट। कोई टीचिंग नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा, ओनली द कोडिंग, डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट वुड बी द केस, राइट। And it is a 5 days programming and 6 days evaluation. 6th day को evaluation है, internal evaluation, और 7th day को army officer के सामने demo है, right? And we have only limited seats, guys. Registration fees जो है इसका 1000 INR है, that is the 1000 INR for registration. जो winner team होगी guys, उसको cash prize है 5000 का। जो विनिंग टीम होगी उसको कैश प्राइज है 5000 का। एंड यहाँ पर तुमको यहाँ पे ये जो चीज देखनी है, करेंटली जो डेटाबेस रिकॉर्ड है अराउंड 1,90,000 रिकॉर्ड्स आर देयर। उस डेटाबेस में करीबन 2 लाख अभी आपको एंट्रीज मिलेंगी, राइट। और ये जो चीज है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है गाइज, एंड दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट इज देयर, राइट। कि यहाँ पे आपको देखेंगे ऑल रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम फर्स्ट फॉक्स से, तो पार्टिसिपेशन रहेगा ही, ठीक है। एंड टॉप 5 सेलेक्टेड टीम वुड एडिशनली रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम क्लाइंट। जो पहली 5 टीमें होंगी ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोग्राम, उनको क्लाइंट से सर्टिफिकेशन का एक लेटर हेड पे उनके मिलेगा, राइट। The top 1 selected team would receive a cash award of 5,000 INR from FOSC, obviously. एक NDA साइन होगा आप लोगों के साथ, जिसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं, कि आप इस तरीके की इंटरनल डिटेल्स को बाहर शेयर नहीं करेंगे, राइट। एंड एक और चीज यहाँ पे है, दूसरा सोर्स कोड जो है वो गिटहब के थ्रू सबमिट होगा, राइट। एंड जो कोड आप सबमिट करोगे वो फॉस्क की ओनरशिप में होगा, राइट। एंड ये चीजें होंगी, राइट। एंड इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होगा गाइस, कोड का कमेंटिंग कैसा है, फॉर्मेटिंग कैसी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखा है नहीं कर रखा, लॉग्स डाल रखे हैं या नहीं रखे हैं, कन्वेंशंस यूज किए हुए नहीं है, कैसा यूजर एक्सपीरियंस आपने बनाया है, यूजर इंटरफेस आपका कैसा है, आर यू मीटिंग द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल। तो वो सब चीजें यहाँ पे रहेंगी। ओबियसली आपको पाइथन है, फ्लास्क है, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सब चीजें आनी चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे तुम देखिए ये क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है, राइट। वो क्या कह रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू रन पाइथन स्क्रिप्ट फ्रॉम द कमांड लाइन एंड इट शुड ओपन ए वेब पेज। मैं कमांड लाइन से पाइथन स्क्रिप्ट चलाऊं, वो वेब पेज को ओपन करे इन द ब्राउजर, राइट। एंड जिसमें कुछ यूआई दिखना चाहिए, राइट। सो एक तो ये होना चाहिए। एंड UI should have the option to select any date। मैं किसी भी डेट को सेलेक्ट कर लूँ, किसी भी फिल्टर लगा दूँ, एंड उसके हिसाब से हमें इंसिडेंट कौन सा कब कहाँ पे क्या हुआ उसको एक बहुत अच्छे विजुअल्स में दिखाना है। 1970 से लेके 2018 तक का उसमें डेटा है, राइट। और क्लाइंट शुड बी एबल टू फिल्टर द टाइप ऑफ इंसिडेंट, जैसे बॉम्बिंग था, असैसिनेशन था, किडनैपिंग था, कुछ और था, ये था, वो था, राइट। वो सब चीजें हैं। क्लाइंट शुड बी एबल टू फिल्टर यूजिंग कंट्री और रीजन और सिटी और वॉट एवर, राइट। ड्रॉ अ हीट मैप ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, right? We draw a heat map of the concentration and intensity year wise for India. India में भी जो particular focus होना चाहिए वो जम्मू एंड कश्मीर पे obviously रहेगा, कि भाई क्योंकि ज़्यादातर केसेस आपको ध्यान है JNK के में ही होती हैं ऐसी चीज़ें, राइट। और बहुत सारे प्लॉटिंग्स और ये सब, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ टेररिज्म, राइट। एक टेररिज्म का पैटर्न हो, ये सब चीज़ें हैं। एंड जनरेट इन्फोग्राफिक्स होता है ना, जिसमें एकदम एक ऐसा मतलब एक डेमो की शुरुआत है, लेकिन एक तरह से आप इसको ऐसे मानिए कि आर्मी को एक ऐसे टूल की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। दे वांट टू डेवलप समथिंग इन हाउस, राइट, जहाँ पे वो इस पूरे डेटा को एक इतने फाइन ग्रेन पे जा करके, राइट, फाइन ग्रेन पे जा करके उसको जो है
कोई उसका डेवलपमेंट हो सके. They don't want to use some other foreign tools, right? So it would be a very high energy project, like, and obviously learning would be very high for you people अगर if you take part in that, right? So आप टीम बना सकते हैं, 2 लोगों की टीम बना सकते हैं, 1 की टीम बना सकते हैं, राइट? मेरे हिसाब से 2 या 3 से ज़्यादा होना तो ठीक नहीं है. मेरे हिसाब से तभी अच्छा काम हो पाता है. और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो इंडिविजुअल है. मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? और ये रजिस्ट्रेशन लिंक है गाइस, राइट? यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट इन दिस, राइट? एंड ओबियसली इसमें मेरा और सिल्वेस्टर सर का मेंटरशिप और गाइडेंस रहेगा इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में. ऐसा नहीं है कि सर सारी चीज़ें आपको करनी है. डे टू डे जो है आपको वो सेशंस रहेंगे, रोज कॉल होगा डेली का, आज क्या अचीव करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें वहाँ पे रहेंगी. सो ऑब्वियसली सिल्वेस्टर विल लुक इनटू एवरीथिंग. एंड सिल्वेस्टर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, शायद आपको नहीं पता ये चीज़, राइट? सो और नहीं पता है तो पता चल जाएगी इस प्रोजेक्ट में जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? सो दैट इज़ द केस गाइज. यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं और आपको शेयर की जा चुकी हैं. दैट PDF has been shared with you guys, right? And I think it's a very good opportunity to work on a live project, right? एक live project पे काम करने का उसका एक अलग ही sense होता है. And when you see a certificate from an army officer, right? कि यार हाँ मैंने उस army officer के लिए काम किया था, right? So right, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं. So I think इस PDF को सभी लोग ध्यान से पढ़ें. और अगर आपको ये बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं कि yes you should take part in this, so you can register for it. And there is there is going to be a very very good learning guys. ये वही डोमेन है जिसमें आपने अपना समर प्रोग्राम कंप्लीट किया है. तो I think everybody should try for this, right guys? And आप सभी लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो वी विल ब्रिंग मोर लाइव प्रोजेक्ट्स टू यू, राइट? हो सकता है फ्यूचर में कुछ हमारे पास फॉरेन के क्लाइंट्स भी हैं, लोकल क्लाइंट्स भी हैं. एंड ओबियसली वो चाहते हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग, जो अच्छे लोग हैं, जिनको काम करना आता है, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करें, POCs बनाएं, डेमो बनाएं, राइट? और फिर बाद में उसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं. सो गाइज, व्हाट इज योर से, डिड यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट? एंड क्या आपको ये आइडिया पसंद आया कि भाई इस तरीके से होना चाहिए लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने से? ओबियसली चीज़ें अलग टाइप की होती हैं, राइट? अलग सी सक्षम का कहना है कि सर फीस ज़्यादा है. सक्षम फीस ज़्यादा नहीं है. अगर तुम उस एक्सपीरियंस करोगे उस 1 वीक को तो तुम्हें फीस कुछ भी नहीं लगेगी. अगर उसमें तुम सोचोगे कि इस 1 वीक में तुमने क्या अचीव कर लिया है तो 1000 रुपये तुम्हें कुछ भी नहीं लगेंगे सक्षम. दैट आई कैन गारंटी यू. अगर तुझे मजा नहीं आया तो सक्षम पैसे वापस ले जाना तेरे 1000 रुपये. आई गारंटी यू. बट मैदान छोड़ के मत भागना. जब सिल्वेस्टर सर जब खींचेंगे ना तो मैदान मत छोड़ के भागना. सिद्धांत कह रहा सर loved it, nothing better than putting your knowledge to real life application. Yeah, good. Yes. मानसी क्या कहना है? पीयूष कह रहा है सर लास्ट डे कब है रजिस्ट्रेशन का? सिल्वेस्टर सर लास्ट डे कब है रजिस्ट्रेशन का? सर वो डेट मैं आज निकालूंगा वैसे, ठीक है ना? बट आप ये मान के आज इनको मान के चलिए कि इनको इस वीक के एंड तक इनको रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक का मैं डेट निकालूंगा कब स्टार्ट करना है इसको. ये है ना? या पीयूष संडे. तो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल शेयर करवा दो, ईमेल पे भी और व्हाट्सएप पे भी. हाँ सिद्धांत कर सकते हो. अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जिनको नॉलेज है पाइथन की, ML की, उनके साथ शेयर करो. बिल्कुल, जो काम कर सकते हैं उनको करो.
दिस इज अ गुड आइडिया सर, कि मतलब अगर वो चाहे अपने फ्रेंड्स को दूसरे लेके आना, जरूरी नहीं कि उन्होंने फर्स्ट से ही कोर्स कर रखा हो, ऐसा नहीं है। वी आर ट्राइंग टू बी वेरी ओपन फॉर दिस, कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट वेयर वी टीच पीपल हाउ टू वर्क ऑन अ क्लाइंट प्रोजेक्ट, कि रियल क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना। स्वीटी कह रही है कि सर स्टार्टिंग डेट है, वो डेट बताएंगे स्वीटी अभी, है ना। शेषा कह रहा है कि सर देश के लिए कुछ करना है। सक्षम का वापस से मैसेज आया कि सर आप तो गुस्सा हो गए। नहीं सक्षम, गुस्से वाली कोई बात नहीं है। तुम शायद मेरा फेस नहीं दिख रहा ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि गुस्से में आ गया। ऐसा ऐसा नथिंग लाइक दैट, राइट। गुस्से की कोई बात नहीं है। योर क्वेश्चन वाज वेरी वेल, यू नो, वैलिड। विकी, मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं एक टीम में। मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं एक टीम में, राइट। पीयूष नेक्स्ट वीक में होगा या फिर देखते हैं जुलाई में जाएगा, एक बार डेट बता देंगे आपको। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही हो जाएगा, राइट। मानसी क्या कहना है तुम्हारा, एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं क्या? अभी शेयर कर देंगे सिद्धांत, अभी शेयर किया नहीं है पीडीएफ। नहीं, पीडीएफ शेयर कर दिया वैसे, इसमें अभी चैट विंडो में भी है सिद्धांत। चैट विंडो पे डाल दिया मैंने, शेषा को मेल किया है, शेषा भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा सबको सर। पीयूष क्या कह रहा है? पीयूष शेषा क्या कह हैव यू रहा है? रिसीव्ड? पीयूष का कहना है कि सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से करेंगे तो एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, अभी एग्जाम्स हैं। अगर जरूरत हो तो अपन लोग उसको जुलाई में भी कर लेंगे, अपने पहली बार स्टार्ट कर रहे, कोई इशू नहीं है। दिस पीपल शुड बी कंफर्टेबल। और उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर ले बच्चे एक लोग जो भी इंटरेस्टेड है, देन आई कैन डिसाइड अ डेट। चंदन, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रहे हैं क्या अभी यार तुम लोगों के? हो गए मानसी, चंदन? सिद्धांत, तुम लोगों के एग्जाम्स वगैरह ओवर हो गए? सौरभ, बीसीआरसी लाइक आरटी वाले एग्जाम्स अभी होने हैं या क्या कहानी है? ओके सिद्धांत, गॉट इट। ओके सक्षम। अच्छा सौरभ, अभी डेट नहीं आई है वैसे, क्या है कुछ कुछ डेट का आइडिया है कब कब से स्टार्ट होंगे? ओके, चलिए ठीक है गाइज। विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू। जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स अभी एक दो बच गए हैं, सिद्धांत, ब्रिंग मोर पीपल एज वेल, राइट। अकेले से तो क्या होगा। सिद्धांत का कहना है कि सर फॉस की वजह से मेरे में बहुत डिसिप्लिन आया है, आप प्लीज ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहिए। एंड आई विल जॉइन ऑल ऑफ देम, ओके। मेरा मानना है डिसिप्लिन वाला चीज तो इम्प्रूव सब जगह हुआ, सभी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन आया होगा। सक्षम भी कुछ दिन पहले कह रहा था कि सर मेरी कोडिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है। मानसी कह रही थी कि सर मुझे कॉलेज में कोडिंग में रैंक मिली थी, राइट। सो पीयूष कह रहे हैं कि सर जल्दी उठना चालू हो गया फॉस की वजह से। स्वीटी कह रही है कि सर नेक्स्ट ट्रेनिंग कब होगी? स्वीटी, पहले प्रोजेक्ट में हिस्सा लो,
उसके बाद उसमें भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा तुमको, मज़ा आएगा उसमें। ओके गाइस, वी हैव अ कॉल, हमारा कहीं और मीटिंग है अभी 12:30, क्लोजिंग नाउ, बाय गाइस। If anybody has any query related to the project season, they can WhatsApp on the group. Okay, no issues. कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनको कुछ समझना है, वो WhatsApp ग्रुप पे। शेषा तुमने शेयर कर लिया WhatsApp ग्रुप पे? Yes, शेषा ने कर दिया है। I think so. शेषा has shared this document on the group also now. चलो ठीक है सर, ठीक है guys. Okay, bye. बाय।